Well, so our today's topic is Coleridge Biographia Literaria. So, as usual, let us talk about what we are going to talk about in this lecture. So, we'll be talking about Coleridge in general, and that is for just for a recap, okay? About his life and about his important works. Then we'll talk about the background of Biographia Literaria. Okay, how did it come into existence, and then what are the views of Coleridge on the poetry of himself and that of Wordsworth. We'll talk about what he talks about nature, imagination and fancy, and then willing suspension of disbelief. And then we'll try to discuss the concept of willing suspension of disbelief with the help of his own poem, that is Rime of the Ancient Mariner. This poem has already been taught to you, right? The Rime of the Ancient Mariner. Yes, and I believe all of you know about it, right? Okay, all right. Yes, so let us quickly begin, have a quick snapshot of the life of Coleridge. So he was born in 1772 in Devonshire, and he studied at Christ Hospital School in London, but he never got a degree of graduation. As Wordsworth, he was also highly influenced by French revolutionary ideals. He was as it was the case of William Wordsworth. The time of disillusionment because of that French Revolution. So he met Wordsworth, and both of them collaboratively wrote lyrical ballads, right? All of you know that he was an opium addict, right? So in that addiction, he has written Kubla Khan, he has written Bibliographia, and also because many things are scattered, okay, in his Bibliographia Literaria, and also Kubla Khan could not complete because of some dream. So critics say that this is because of some intrusion from a person from Porlock. Did you hear about Porlock? Okay, we'll talk about that. Okay, so but critics interpret that this was nobody. This was Coleridge himself, or because he awoke from that addiction, or addiction of opium. Okay, so he died in 1834. Now his main works are in 1798. He collaborated, and that is his first poem, The Rime of the Ancient Mariner. Christabel, 1816, and then 1816 again he wrote Kubla Khan, which he could not complete, and in 1817 he wrote Biographia Literaria. Now let us have a quick snap of Biographia Literaria. The other name for Biographia Literaria is Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions. Please do remember this. The other name for this work is Biographical Sketches. Okay, who has written descriptive sketches? William Wordsworth. Very good. Okay, and sketches by Boz. Dickens. And there is another sketches called political sketches, perhaps. You find out it. Okay. So his work talks about theology, philosophy, literary theory, and the nature of imagination and poetic genius. So all of you know what do we mean by theology. Theology is the study of God and religion. Okay. Philosophy talks about philosophy, and especially when he talks about imagination, he talks about philosophy. He gives literary theory with the help of again this imagination, fancy, and that suspension of disbelief. Okay.
One important point about this work is that he dictated much of it what Biographia Literaria to his friend John Morgan. Okay, so he had the idea, but he didn't write. So he dictated these things, and John Morgan wrote these things. Originally, this Biographia Literaria was conceived as preface to what? Sibylline Leaves in 1817. इसका प्रिफेस इसको मतलब इसके प्रिफेस के फॉर्म में इसको लिखना था, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली इट केम एज वर्क ऑफ क्रिटिक, एंड this is well known, everybody knows that this was a reply to Wordsworth preface to lyrical ballads, okay, where he talks about language of man. Poet writes in the language of common man, okay. Then it was published in 2 volumes in July 1817. Volume 1 has 13 chapters, 1 to 13, and then volume 2 has 14 to 22 chapters. Last point is important. बहुत ही हेस्ट में उन्होंने 2 चीज़ों को ऐड किया था. One is Saturn's letters and the other is critique on Bertram. Okay. At the last moment, these 2 things were added in this work. Now, no, these are essays. One is letter and the other is essay. Okay. Then let us talk about, in general, what are the views of Coleridge and what are the views of Wordsworth. Okay, what Wordsworth talk about poetry, diction, language, and what Coleridge says. So if we talk about Wordsworth, he says that the content of the poetry, the raw material for poetry should be from ordinary life, from common man, not from the kings, bards, knights, right? And unka aim kya hai? He says that the aim of poetry is to give these ordinary things the charm of nobility. Okay, means ये जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं, करते हैं, उन सबको एक नोबल फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है. सो इट शुड बी गिवन अ चार्म, मतलब उनकी बात को भी पोइट्री में लाया जाए, राइट. बट इफ़ वी कंपेयर इट टू कॉलेज, कॉलेज की पोइट्री कहती है, उनकी पोइट्री क्या कहती है कि कंटेंट क्या होना चाहिए? फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ. वर्ड्सवर्थ की पोइट्री. कॉलेज की पोइट्री क्या कहती है? सुपर नेचुरल कैरेक्टर शुड बी देयर. एंड उनका एम क्या है? दैट द नोबिलिटी शुड बी गिवन टू द प्रैक्टिसेस और व्हाट्स एवर थिंग्स आर डन बाय कॉमन पीपल. लेकिन ये कहते हैं एम ऑफ पोइट्री शुड बी टू गिव देम, टू गिव whom? To give the readers a semblance of truth. Semblance is an archaic form of the modern word resemblance. Okay, similar to. Okay, तो जो मतलब ट्रुथ को किस फॉर्म में दिखाना है? विच इज सिमिलर टू, सॉरी, पोइट्री किस फॉर्म में होनी चाहिए? विच इज सिमिलर टू ट्रुथ. Then coming back to Wordsworth again, Wordsworth, okay, about his style, Wordsworth says the language of common man purified by the poet. Okay, so वो जो कुछ भी लोग बोलते हैं, जिस लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं, उसको वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उसको प्यूरीफाई फॉर्म में, उनके एक्सप्रेशंस को, उनकी लैंग्वेज को पोइटिक फॉर्म में लाना चाहिए. एंड इंटरेस्ट क्या है उनका? रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, इमेजिनेशन एज अ मीन्स ऑफ नॉलेज. ये इम्पॉर्टेंट है. वर्ड्सवर्थ कहते हैं, वर्ड्सवर्थ के लिए इमेजिनेशन क्या है? अ मीन्स ऑफ नॉलेज. और नेचर उनके लिए क्या है? इट्स रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर. Now let us see what Coleridge says about it. Coleridge says, he says it should be archaic. Archaic means not modern. Yes, poet. And sound devices.
it should be in the form of metrical composition. He talks about diction, he talks about meter in detail. Interest क्या है? The creative power of imagination. Whereas Wordsworth, what does Wordsworth say? Imagination, he sees imagination in the form of what? In the form of knowledge. Okay. Well, but he sees imagination in the form of creative power. Okay. Is that any doubt till here? These are very common things, I believe all of you know. Alright. Now, the key distinction between these two poets is about poem, language of a poem and prose. Okay. So we'll talk about this language aspect a little later. We will see these things in terms of epistemological and aesthetic one. Epistemology जानते हैं सब लोग, ontology and epistemology. Can anybody explain what is ontological and what is epistemological? Okay. Ontological is study of being. Okay. हमारा जो existence है उसकी स्टडी हम करते हैं किसमें? ontological terms में, ontological. एपिस्टोमोलॉजिकल क्या है? स्टडी ऑफ नॉलेज. ठीक है, मतलब हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हम कैसे इस अर्थ पे आए, क्या हुआ, ठीक है, हम क्या हैं, व्हाट आई एम, ठीक है, उसकी स्टडी कौन करता है? ऑन्टोलॉजी. और जो नॉलेज है, जो फिलॉसफी है, उसकी स्टडी करता है एपिस्टोमोलॉजी. ओके, सो एपिस्टोमोलॉजिकल एंड एस्थेटिक वन बिटवीन पोइट्री एंड साइंस. अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा. वर्ड्सवर्थ ने कहा था बिटवीन लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड प्रोज देयर इज नो फंडामेंटल डिफरेंस. ओके, लेकिन ये कहते हैं कि जब भी हम पोएम और प्रोज की बात करें तो हमको किस टर्म में सोचना चाहिए? एपिस्टोमोलॉजिकल और एस्थेटिक सेंस में सोचना चाहिए उसके बारे में. तो एपिस्टोमोलॉजिकल क्या है? स्टडी ऑफ नॉलेज. अब स्टडी ऑफ नॉलेज कहाँ होती है? साइंस में. And science is not in the form of poetry, it is in the form of prose, right? और पोइट्री का पर्पज क्या होता है? aesthetic one, okay, to give pleasure, right? And with the help of pleasure to give the truth, semblance of truth, if you can remember. Okay. So poetry's aim is not truth as, but ये important है, वो कहते तुम्हें semblance of truth होना चाहिए, लेकिन poetry's aim is not truth as verisimilitude. I hope you know the meaning of verisimilitude. Okay, as it is, as right, authenticity. और वो ऑथेंटिसिटी किस में आएगी? एपिस्टोमोलॉजिकल स्टडीज में ऑथेंटिसिटी होती है, बिकॉज एपिस्टोमोलॉजिकल स्टडीज होती हैं साइंटिफिक बेस्ड. ओके, बट इट शुड बी सिमिलर टू इट, सिमिलर टू ट्रुथ, राइट? सो बट ट्रुथ एज फीलिंग, एज यूनिफिकेशन एंड एज पावर. ठीक है, वो कहते हैं ट्रुथ को आपको रियलाइज कराना है अपने ऑडियंस को, ठीक है, उनको फील कराना है, और कैसे यूनिफाइड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, ठीक है, कैसे कैसे वो पावर है, ठीक है, इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन कराना है आपको. बाकी जब वर्सिबिलिट्यूड की बात आती है तो साइंस काम करती है, राइट? सो प्लीज डू रिमेंबर दीज टू वर्ड्स, ontological and epistemological. ठीक है, so we can also say that for Coleridge, poetry's aim is is related to ontological study. Ontological study means study of being. Okay, okay. Then what does Coleridge talk about nature? Let us have a quick snap of it. वर्ड्सवर्थ का मानना क्या था? नेचर क्या है? इट इज ए मॉरल गाइड एंड अ सोर्स ऑफ कंसोलेशन. आपने अभी कुछ ही दिन पहले टिंटर्न अभी पोएम पढ़ी थी, ठीक है, उस पोएम में बताया गया था कि कैसे ये आपको मॉरली गाइड करती है और कैसे ये सोर्स ऑफ कंसोलेशन है, ठीक है ना. देन इट रिप्रेजेंट्स द अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ the ideal in the real, right? And not identified with the divine for Wordsworth. Okay, sorry, for Coleridge, right?
तो कॉलेज का कहना है कि ये रिफ्लेक्शन है किसका, इफ यू लुक एट दिस लास्ट बॉक्स, it is a reflection of the perfect world of ideas. Now you can think about in terms of Plato. Okay, he also says something like that, reflection of the truth, right? Then material world is nothing but the projection of the real world of ideas, and this is what poetry is for Coleridge. Poetry does not nature does not console him. Nature is not a moral guide for him, unlike that of Wordsworth. Okay, that is important. Now let us begin with the chapter 13 of Biographia Literaria. There are 3 chapters in your syllabus: chapter 13, chapter 14, and then chapter 18. Okay, so it begins with Descartes speaking as a naturalist and in imitation of Archimedes. ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि किन 2 फिलोसफर्स की बात करते हैं वो अपने चैप्टर 13 में, ठीक है। तो डेस्कार्ट्स का पूरा नाम था रेने डेस्कार्ट्स, रेने RENE, रेने डेस्कार्ट्स, ठीक है। और ये एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं जिन्होंने जियोमेट्री और एल्जेब्रा को कंबाइन किया था, उनके बीच में एक लिंक दिखाया था, रिलेशनशिप दिखाया था, तो 2 चीज़ों को यूनिफाई किया था। अभी हमने बात की थी कॉलेज यूनिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। वो अभी हम बात करेंगे कि मैटर और मोशन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ही है मैटर और मोशन, ठीक है। तो ये दोनों ही फिलोसफर आर्किमिडीज ग्रीक मैथमेटिशियन थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, और डेस्कार्ट्स ये क्या थे, फ्रेंच फिलोसफर थे जिन्होंने जियोमेट्री एंड अलजेब्रा के बीच में रिलेशनशिप दिखाया था और उनको यूनिफाइड फॉर्म में दिखाया, राइट। तो इन्होंने कहा कि गिव मी मैटर एंड मोशन। व्हाट इज मैटर? मैटर, बॉडी इज द मैटर, स्पिरिट इज द मोशन, ठीक है। द मटेरियल दैट इज बीइंग यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ कार, दैट इज द मैटर, ठीक है। और वो उसमें मोशन कैसे आता है, दैट कंबशन सिस्टम, सबको पता होगा कंबशन सिस्टम होता है जिसकी वजह से ही कोई कार और बाइक चलती है, राइट। तो वो मोशन है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर ये 2 चीज़ें हमको मिल जाए, मैटर हो हमारे पास और मोशन हो, आई विल कंस्ट्रक्ट यू द यूनिवर्स। एंड यू विल एग्री विद दिस पॉइंट दैट एवरीथिंग दैट इज इन द साइंस नाउ डेज, ओके, in mechanical engineering, okay, is matter and motion. In other sciences also, like computer science, matter is the computer hardware and the motion is the software, right? So only these 2 things are required for the universe, okay. In the same sense, the transcendental philosopher says, okay, अब transcendental philosophy क्या है, पता है सबको? नहीं पता है? Any idea? Okay. Transcendental philosophy, it's a fundamental structure of being not as an ontological or ontology, right? Ontology क्या है? Repeated theory of being और study of being, ठीक है। तो ये ontology से रिलेटेड नहीं है, ट्रांसडेंटल फिलोसफी किससे रिलेटेड है? ये है किसका फ्रेमवर्क है? इमरजेंस और एंड वैलिडेशन ऑफ नॉलेज ऑफ बीइंग, ठीक है ना। तो ये नॉलेज का कैसे इमर्ज हुई और कैसे इसको हम वैलिडेट करते हैं, ठीक है। नॉलेज क्या है, कहाँ से आई, ठीक है, किस फॉर्म में है, और कैसे हम उसको वैलिडेट करते हैं, क्या हम कैसे हम उसकी एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी करते हैं। ये टर्म थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ट्रांसडेंटल फिलोसफी इज नॉट रिलेटेड टू ऑन्टोलॉजिकल स्टडी। ऑन्टोलॉजिकल स्टडी इज द स्टडी ऑफ बीइंग, ठीक है, अस्तित्व की स्टडी है वो, ठीक है। व्हाट आई एम की स्टडी है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी की या नो नॉट मैटर, इन फैक्ट आई एम में मतलब उसमें आप इसको ऐसे सोच सकते हैं ना, मतलब जैसे इंसान है तो इंसान मतलब क्या है इनफैक्ट, ठीक है। और जब मोशन और मैटर का कनेक्शन हो जाता है तो फिर स्टडी ऑफ नॉलेज हो जाती है, ठीक है ना। हाउ वी आर कनेक्टेड टू गॉड ऑफ विच वी आर ए पार्ट ऑफ, ठीक है।
तो वो एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी हो जाती है, राइट। तो ये जो ट्रांसडेंटल फिलोसफी है ये बात करती है कि ये नॉलेज का जो फ्रेमवर्क है वो कैसे आया, ठीक है, और इसको हम वैलिडेट कैसे करते हैं। और ये नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट, ये फिलोसफी, इसका जो फिलोसफी का ओरिजिन है वो है इमैनुअल कांट से। इमैनुअल कांट थे अ जर्मन फिलोसोफर, ठीक है। तो ट्रांसडेंटल फिलोसोफर्स कहते हैं, शुड आई रिपीट इट, ट्रांसडेंटल फिलोसफी, और इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ। देखो, एक है ओंटोलॉजिकल स्टडी। ओंटोलॉजिकल स्टडी में क्या हो रहा है, दिस इज स्टडी ऑफ बीइंग, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, मैं क्या हूँ, ठीक है, इसकी स्टडी है, आई एम की स्टडी है, राइट। अब नॉलेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब जैसे हमको कुछ भी पता है, जैसे हमको कॉलेज के बारे में पता है, ठीक है, हम कॉलेज को पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, तो ये मतलब कैसे माइंड में सारी चीज़ें आई, ठीक है, या कॉलेज ने जो कुछ भी लिखा वो कैसे उनके माइंड में आया और उन्होंने कैसे उसको वैलिडेट किया, ठीक है। ये हम स्टडी जब हम करते हैं तो वो बन जाता है ट्रांसडेंटल फिलोसफी। और ये फिलोसफी कहाँ से आई है, जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट से। तो ये जो नॉलेज ऑफ बीइंग है, राइट, उसके बारे में बात करती है ट्रांसडेंटल फिलोसफी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ग्रांट मी अ नेचर हैविंग टू कॉन्ट्ररी फोर्सेस, ठीक है, द वन ऑफ विच टेंड्स टू ये मतलब ये कॉन्ट्ररी फोर्सेस की बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ। ग्रांट मी अ नेचर ऑफ हैविंग टू कॉन्ट्ररी फोर्सेस, द वन ऑफ विच टेंड्स टू एक्सपेंड infinitely while the other strives to apprehend or find itself in the infinity, ठीक है। अब देखो, सोचिए, हम अगर हम आई एम की बात करें, हम क्या है, ठीक है ना, तो हमारा जो आई है वो तो इनफाइनाइट है, ठीक है ना, हमको गॉड ने जो भेजा, बिकॉज वी आर द पार्ट, पार्टिकल ऑफ गॉड, तो वो जो आई है वो तो इनफाइनाइट है, और हम इनफाइनेटली उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं, इनफाइनेटली हम उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं, ओके, फ्रॉम द एजेस ऑफ एंशियंट्स, ओके, फ्रॉम रामायण, महाभारत, कुरान, सब में किसकी बात करते हैं कि ये जो इनफाइनाइट आई है, ठीक है, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ है जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, और दूसरी चीज़ है जो उस एग्जिस्टेंस की स्टडी कर रहा है, ठीक है, कैसे रिलेटिवली वो, मतलब जो हमारा माइंड है वो कैसे कनेक्ट कर पा रहा है जो एक यूनिफाइड होल है जो गॉड है, ठीक है, उससे कैसे वो यूनिफाइड कर पा रहा है, उसके बारे में हम लोग बराबर क्या करते रहते हैं, फाइंडिंग करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो, हम एक अगर लाइन में बताएं कि अगर मैंने कहा कि वी आर द पार्टिकल ऑफ गॉड इज द यूनिफाइड होल एंड वी आर द पार्ट्स, राइट, ये हमने एक स्टेटमेंट दिया, ऑन्टोलॉजिकल स्टेटमेंट है। अब अगर आप अगर इसकी स्टडी करने लगे कि सर ने जो कहा था कि वी आर द पार्ट ऑफ गॉड, वो हम कैसे हैं, हम अपने आप को कैसे गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी हो जाएगी वो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, उसको हम अब आगे डिटेल में बात करेंगे। तो एक है इनफाइनाइट, जो आई एम है वो इनफाइनाइट है, और उस आई एम के बारे में हम हमेशा से ही, अपने बचपन से ही स्ट्रगल करते रहते हैं ये ढूंढने का कि एक्चुअली मैं हूँ क्या, हम कैसे, जिससे भी हम रिलेटेड हैं वो कैसे हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि अगर ये दो चीज़ें हमको मिल जाए, ठीक है, तो आई विल कॉज द वर्ड ऑफ इंटेलिजेंसेस, ठीक है। नाउ दिस इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू व्हाट, एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी, राइट, with the whole system of their representations to rise up before you, okay. अभी ये डेफिनेशन थोड़ा आपको और समझ में आ जाएगी once we talk about that imagination and primary secondary imagination and fancy and willing suspension of disbelief, all these things. ये टू फोर्सेस की अगर हम और थोड़ा बात करें तो ये शर्लिंग का एक वर्क था, सिस्टम ऑफ ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म, ये याद रखना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट आया है
ये FWJ वॉन सर्लिंग का वर्क सिस्टम ऑफ ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म, और इन्होंने ही द फर्स्ट सिस्टमेटिक यूज ऑफ डायलेक्टिक, किसके थ्रू होता है ये, शर्लिंग के थ्रू होता है। किस चीज़ का सिस्टमेटिक यूज ऑफ डायलेक्टिक। डायलेक्टिक क्या है, आपको इसमें कुछ नोट्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट टर्म्स हैं। डायलेक्टिक क्या है, द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन द ट्रुथ ऑफ ओपिनियंस, ठीक है ना, जो भी लोगों के ओपिनियंस होते हैं उनमें सच्चाई क्या है, उसको इन्वेस्टिगेट करने का जो आर्ट है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मेरा ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, क्या दोनों ओपिनियन सच हैं या दोनों में कुछ कुछ सच्चाई है, तो वो क्या है, उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है दैट इज कॉल्ड डायलेक्टिक, ठीक है। अब ये डायलेक्टिक में 3 चीज़ें हैं, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट बिकॉज इनका ओरिजिन फिलोसफी का यहाँ से है, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस को पहले समझ लेते हैं। ये एक्चुअली बाद में हेगेल ने इस पे बहुत काम किया था, फ्रेडरिक हेगेल ने। तो उन्होंने कहा था थीसिस कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, उसकी फिर एक एंटीथीसिस है, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने सॉरी कहाँ चला गया हूँ, देयर वाज वन अनदर डायग्राम, या इट इज हियर, या मेरा थीसिस है कि ऑल SRP, ठीक है, और आपका थीसिस है कि ओनली सम SRP। ये एंटीथीसिस हो गई, ठीक है ना। अब हेगेल कहते हैं कि सिंथेसिस हमको कैसे करना है, बेस्ट ऑफ द टू। जो थीसिस है, मैंने जो स्टेटमेंट दिया या जो मेरा ओपिनियन है, और फिर जो आपका ओपिनियन है वो उसका एंटीथीसिस हो गया। फिर अगर हम दोनों का जो बेस्ट है अगर हम वो ले लेते हैं, दैट बिकम्स सिंथेसिस। और इसी की आगे बात करेंगे, वो इमेजिनेशन फैंसी वगैरह में कॉलेज बात करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें बेस्ट क्या ले लिया, हमने कहा इन ईदर इवेंट, चाहे आप ये बोलो कि ऑल SRP और चाहे आप ये बोलो ओनली सम SRP, इन ईदर इवेंट सम SRP, ये सिंथेसिस है, ये इसका निचोड़ है, सारांश है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, ये आपके वो मतलब लॉजिकल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं, इनके हेगेल के फॉर्म से। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, उसमें नेट में बहुत आते हैं। चलो ठीक, ओके। सो इन्होंने फर्स्ट सिस्टमेटिक यूज किया था डायलेक्टिक का। मैं रिपीट कर देता हूँ, डायलेक्टिक क्या है, ट्रुथ ऑफ ओपिनियंस को इन्वेस्टिगेट करने की आर्ट है डायलेक्टिक, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये टर्म इस टर्म को यूज नहीं करते हैं अपने वर्क में। अब ये कहते हैं डायलेक्टिक ओनली वर्क्स इफ द ओरिजिनल टर्म ऑलरेडी कंटेन्स इट्स अपोजिट विद इन इटसेल्फ। तो अगर उसका अपोजिट नहीं है, एंटीथीसिस नहीं है, तो फिर डायलेक्टिक वर्क नहीं करता है, ठीक है। ओके, नाउ ये थीसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपने जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है, हर चैप्टर में कुछ इन्होंने थीसिस दी हैं, ठीक है। जैसे चैप्टर 13 में देयर आर 10 थीसिस, स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है। ओके, नाउ या यस, अब शर्लिंग का जो ये ड्यूअलिटी वाला स्ट्रक्चर है, और मतलब थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का, इसमें ये आर्ग्यू करते हैं कि नॉलेज रिक्वायर्स अ रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब ये इम्पोर्टेंट बहुत है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा फर्डिनेंड डी ससोर के कॉन्सेप्ट से। याद है आपको फर्डिनेंड डी ससोर का, रवि सर ने पढ़ा दिया है आपको। वाइट वाइट क्यों है, वाई इज वाइट वाइट, बिकॉज yes, because black exists, right? So सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाइनरी अपोजिशन, ठीक है। हम क्यों हैं, अगर हम फिलोसफी में बात करें, बिकॉज गॉड एग्जिस्ट्स, राइट। सो इफ देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दे मस्ट हैव समथिंग इन कॉमन। अगर दोनों में रिलेशनशिप है कुछ, तो कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन है। व्हाइट और ब्लैक में कॉमन क्या है, दोनों कलर हैं, ठीक है, और उनका दोनों का एक ओरिजिनल यूनियन है, ठीक है। ओके,
कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? थोड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू इमेजिनेशन। ओके, सो कैपेसिटी ऑफ द माइंड टू रिसीव and see, this is inherent. Inherent means this capacity we do have since childhood to receive, to represent and reassemble images gained from experience। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लें उसकी SLA की, सॉरी लैंग्वेज एक्विजिशन की। एक्विजिशन कैसे होता है लैंग्वेज का? चाइल्ड क्या करता है, चाइल्ड का माइंड जो कुछ भी उसके एनवायरनमेंट में जो भी वर्ड्स या लैंग्वेज यूज की जाती है उसको राइट इमिटेट करता है, उनको रिसीव करता है। ठीक है, अब देखिए इमेजिनेशन वहीं से रिलेटेड है। ठीक है, वो उसको रिसीव कर रहा है, उसके पास वो कैपेसिटी है। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट भी करने का ट्राई कर रहा है। और कैसे? रीअसेंबलिंग इमेजेस, जो उसके एक्सपीरियंस ने उन इमेजेस को गेन किया है, जो भी उसके एनवायरनमेंट में बोला जा रहा है। ठीक है, उनको वो रिप्रेजेंट करने की उसके अंदर जो कैपेसिटी है, ठीक है, दैट कैपेसिटी इज इमेजिनेशन इफ वी थिंक अबाउट चाइल्डहुड। ठीक है, एंड इट्स नॉट पैसिव। ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ अनकॉन्शियस होता है, बच्चा भी ट्राई करता है चीज़ों को सुनने का, समझने का, उनको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है ना, बट हेल्प्स टू शेप इट बोथ ऑन एन ऑन्टोलॉजिकल एंड अ फिलोसॉफिकल लेवल। ठीक है, अब हम जब पहले तो हम लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हमारा कोई फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, कोई एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। ठीक है ना, बट एज वी आर ग्रोन अप्स, तो हम जो भी सुनते हैं, जो भी लोग स्टेटमेंट्स देते हैं, हम ब्लाइंडली बिलीव तो नहीं कर लेते हैं, राइट? हम उस पर सोचते हैं। वी गिव अ थॉट ऑन द थिंग्स विच आर सेड बाई पीपल। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि रोज कॉजेज कैंसर, विल यू बिलीव ऑन मी? आप बिलीव कर भी सकते हैं अगर मैं उसके लिए लॉजिक दे दूं आपको। अगर मैं लॉजिक दूंगा फिर आप देखेंगे कि वो सच है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं बोल देता हूं, देखो रोज जो है ना, रोज क्या है? रोज इज अ सिंबल ऑफ लव। ठीक है, अब हाँ, रोज इज अ सिंबल ऑफ लव एंड अब मैं अपना लॉजिक दे रहा हूं, देखो आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। रोज इज अ सिंबल ऑफ लव, लव इज ब्लाइंड एंड if you follow something blindly, then you lead towards destruction. ठीक है, then there is a fall, and when there is a fall there is a death of what? Either of the body or of the soul, right? So अब रोज क्या कर रहा है? आपको प्यार की तरफ ले जा रहा है और प्यार आपको धीरे धीरे मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। तो इट्स लाइक ए कैंसर। So now yes, so ontological statement क्या था? मैंने बोला कि this causes cancer, रोज causes cancer। अब आपने उस पे फिलोसफी, जो भी मैंने फिलोसफी दी उस पे आपने मतलब आपने हो सकता है उसको अलग तरीके से नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, फिर मैंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया। ठीक है, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट दिया या साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जो भी आप सोचो। ठीक है, तो अब आप भी उस पर सोचने को मजबूर हो रहे हैं, राइट? तो आप उसको मतलब साइंटिफिकली हो सकता है प्रूव करने का ट्राई करें, या हो सकता है लॉजिकली ट्राई करने का प्रूव करें, तो वो एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल हो गया। ठीक है, तो जो इमेजिनेशन है हमारी, वो केवल ऑन्टोलॉजिकल नहीं है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे माइंड में आता है, केवल ऐसे ही नहीं कि कोई एक चीज आ गई बस वहीं खत्म हो गई। जो भी हम सोचते हैं फिर उस पर हमारा फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन भी होता है, चाहे वो वर्ड के सामने हमारा इंटरप्रिटेशन जाए या ना जाए, बट वी थिंक। और जब भी ऑन्टोलॉजिकल स्टेटमेंट पर फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन होने लगता है, तब होती हैं डिस्कवरीज, तब होते हैं इन्वेंशंस, राइट? वो एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री आपने सुना होगा, ठीक है ना? तो एक छोटा सा बच्चा वो देख रहा था, तो अगर मैंने बोला, उस बच्चे को बोला कि मतलब एप्पल्स जो है ना वो पेड़ से नीचे ही गिरते हैं, तो ये एक मेरा ऑन्टोलॉजिकल स्टडी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब बच्चे ने उस पर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू लगाया, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? और जब उसने वो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू लगाया तो क्या हुआ? तो थियरी ऑफ, कौन सी थियरी आई?
ग्रेविटेशन, थियरी ऑफ ग्रेविटेशन, वही एप्पल से तो कहानी पढ़ी होगी ना आपने ये। Yeah. हाँ हाँ, वहीं से। तो वो जो इमेजिनेशन है वो इट इज नॉट ओनली ऑन्टोलॉजिकल, इट इज एपिस्टेमोलॉजिकल एज वेल। अब उस पर एपिस्टेमोलॉजिकल मतलब लेवल तो सबके में है, लेकिन कितने लोग उस पर वर्कआउट करते हैं। सोचते तो हम बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वर्कआउट सारे लोग तो नहीं करते हैं। अब जो वर्कआउट करते हैं वो डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, कोई पोइट्री लिख देता है, कोई नोवेल लिख देता है, राइट। सो ओके, now let us talk about there are two kind of imagination, it imagination का definition समझ में आ गया आपको? any doubt till here? scattered images पहले रिसीव किया, images scattered images हैं, उन images को represent कर रहा है, किया जा रहा है through imagination। और imagination is not only ontological, it's not passive, it is epistemological, it is philosophical, it is psychological। okay, कोई डाउट हो तो बताइए। Alright, then we have two kinds of imaginations, primary imagination and secondary imagination। ठीक है, तो प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है? वो ऑन्टोलॉजिकल है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ये सभी के पास है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच कंट्री यू बिलोंग टू, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच क्लास और कास्ट और क्रीड यू बिलोंग टू, एवरीबडी हैज this divine capacity, everybody has the power to imagine। ठीक है, repetition in the finite mind of the internal act of creation in the infinite I am। तो मैं जो हूँ, जो हमारा आई है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, अब उस इनफाइनाइट में सारी चीज़ें रिपीट होती रहती, मतलब हम बराबर सोचते रहते हैं कि मतलब वो एक्चुअली है क्या वो सब कुछ। ठीक है, और उसमें जो इमेजेस का रिफ्लेक्शन होता है, जितनी भी इमेजेस होती हैं वो वो फाइनाइट माइंड का रिफ्लेक्शन है सारी चीज़ें। ठीक है, तो माइंड फाइनाइट है और आई इज इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दैट आई यू कैन इनफाइनाइटली थिंक विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट माइंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा वो उसकी भी बात कर लें, अच्छा ठीक, वो हम बाद में बात करेंगे। ऑलराइट, सो दैट कनेक्ट्स ह्यूमैनिटी टू गॉड एंड यूनिफाइड नोइंग एंड बीइंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वो ऑन्टोलॉजिकल है। ठीक है, उस पर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत नहीं होते हैं। ठीक है, और इमेजेस हमारे मतलब डेवलप होती रहती है हमारे माइंड में, और वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को रिलेट करने का ट्राई करता है। ठीक है, बच्चा अगर डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि वाइट कलर है कुछ, तो इसका मतलब वो उस वाइट का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ब्लैक, ठीक है ना, वो दोनों चीज़ों को इमेजिन कर पा रहा है, तभी वो उनमें दोनों में डिस्टिंग्विश कर पाएगा। ठीक है, ओके, देन सेकेंडरी इमेजिनेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो प्राइमरी तो सभी के पास होता है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन लोग करते हैं, उसके ऊपर पीपल थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस, बट many people do not work out on those things। तो इसको हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में देखेंगे, या एपिस्टेमोलॉजिकल टर्म्स में देखेंगे, या फिलोसॉफिकल टर्म्स में देखेंगे। द एक्सप्रेशन ऑफ द सेम यूनिफाइंग क्रिएटिव पावर इन द ह्यूमन माइंड एज इट स्ट्रगल्स टू आइडियलाइज एंड टू यूनिफाई इट्स वेल्टर ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखिए, हमारे माइंड में जो इमेजेस क्रिएट होती हैं, ठीक है ना, जब ऑन्टोलॉजिकल फॉर्म में, तो वो इमेजेस किस फॉर्म में होती हैं? दोज इमेजेस आर इन नो ऑर्डर। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ टर्बुलेंट मूव, ठीक है ना, खियोटिक मूव। ठीक है, मतलब आप शाम को लेट गए हैं, नींद नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी इमेजेस क्रिएट हो रही हैं आपके माइंड में। तो वो सारी इमेजेस किस फॉर्म में, उनका कोई लॉजिकल ऑर्डर नहीं है, चलता जा रहा है, जो कुछ चल रहा है वो चलता जा रहा है, राइट। अब अगर उसी को हम साइकोलॉजिकल टर्म में देखें और उसको हम आइडियलाइज
आइडियलाइज और उनको यूनिफाई हम कैसे कर पा रहे हैं उसको, ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल टर्म में हम बात कर रहे हैं या फिलोसॉफिकल टर्म में बात कर रहे हैं। और सेकेंडरी इमेजिनेशन प्रोडक्टिव है, ठीक है, यूनिफाइंग है और वाइटल है। वाइटल किसके सेंस में है? वाइटल पावर दैट डिजॉल्व्स, ये इन्हीं का वो है टर्म है, याद रखना पड़ेगा, दैट डिजॉल्व्स, डिफ्यूजेज, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट, ठीक है। अब डिजॉल्व क्या होता है? आपके माइंड में सीरीज ऑफ इमेजिनेशन है, ठीक है ना, फ्रॉम वन इमेज यू आर मूविंग फ्रॉम वन इमेज टू अनदर, ठीक है, सो यू आर डिजॉल्विंग, ओके। डिफ्यूज होता है एक्सटेंडिंग, ओके, और स्प्रेड आउट फ्रीली, मतलब जैसे आपने वाटर में कोई सपोज इंक डाल दी, तो वो इंक क्या करेगी, उसका नेचर क्या है, दैट इंक विल डिफ्यूज, ओके, इट विल स्प्रेड आउट फ्रीली, राइट। तो उसकी इमेजिनेशन कैसी हो रही है? इट्स स्प्रेडिंग नाउ, राइट। एंड देन डिसिपेट, राइट। डिसिपेट के वैसे तो कई सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन कई सारे क्रिटिक्स ने इंटरप्रेट किया है कि क्योंकि वो ओपियम ईटर थे, सॉरी एडिक्टेड थे, तो बिकॉज दिस वर्ड इज ऑल्सो रिलेटेड टू ड्रिंक टू एक्सेस फॉर प्लेजर, बहुत ज़्यादा मतलब ड्रिंक कर लेना प्लेजर के लिए, ठीक है ना, हाईली इंटॉक्सिकेटेड। तो अब जब हाईली इंटॉक्सिकेटेड फॉर्म में है, अब वो इंटॉक्सिकेटेड फॉर्म पोट्री के फॉर्म में क्या है? आपके पास इमेजेज हैं, यू आर मूविंग फ्रॉम वन इमेज टू अनदर इमेज। उसके बाद में फिर आप क्या कर रहे हैं? अपनी इमेजेस को क्या कर रहे हैं? डिफ्यूज कर रहे हैं, मतलब इसको एक वाइड फॉर्म में दे रहे हैं, और मतलब सब में एक यूनिफिकेशन लेके आ रहे हैं। जैसे कि वाटर में एक अगर वन ड्रॉप ऑफ इंक अगर आप डाल देते हैं तो वो डिफ्यूज हो जाती है, तो सारी इमेजेस को एक फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में इमेजिनेशन का जो हाईएस्ट फॉर्म है, जैसे आप बहुत ज़्यादा अगर इंटॉक्सिकेटेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मदरा पान कर लिया है प्लेजर के लिए, तो वो जो फॉर्म है, द फॉर्म ऑफ इकस्टेसी, एक्चुअली परम आनंद का जो फॉर्म है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जब आप पहुँच जा रहे हैं तो फिर क्या होता है? रिक्रिएशन होता है। तो एक्चुअली पोइट आपको मतलब ये नहीं कह रहा है कि आप भी ओपीएम खाने लग जाए, वो उस फॉर्म में रहते थे, और ये भी कहते हैं कि जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन है वो एक्चुअली यही है, तो उससे वो कंपेयर कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। तो टू रिक्रिएट बाय दैट सिंथेटिक एंड मैजिकल पावर ऑफ इमेजिनेशन, तो कहते हैं जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन है वो थीसिस, एंटीथीसिस को क्या करता है? प्लीज कम अप विद द वर्ड। थीसिस और एंटीथीसिस को क्या करेगा? वो सिंथेसाइज, वेरी गुड, सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। तो यही मैजिकल पावर है कौन सी इमेजिनेशन का? सेकेंडरी इमेजिनेशन। गॉट इट? अभी हम थोड़ा और आपको डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझ पाना। वैसे तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, आपने पीजी में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने पीएचडी किया है, नेट किया है, पढ़ा होगा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वही कहते हैं। वो कहते हैं कि जो आपका प्राइमरी इमेजिनेशन है वो तो सबके पास है, लेकिन एवरीबडी इज नॉट अ पोइट, एवरीबडी इज नॉट अ साइंटिस्ट। सेकेंडरी इमेजिनेशन के जब हाईएस्ट फॉर्म में आप पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? वो आप जो इमेजेस हैं उन इमेजेस को डिफ्यूज करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, और अब उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप स्प्रेड करते हैं, फ्रीली स्प्रेड कर रहे होते हैं, और उन चीज़ों से फिर आप चीज़ों को रिक्रिएट करते हैं, एक नए फॉर्म में उसको लेकर के आते हैं, ठीक है ना। तो अब नए फॉर्म में लाने का मतलब, जैसे मैंने अभी वो एप्पल की स्टोरी आपको सुनाई, तो ये तो पहले से ही था कि एप्पल नीचे गिरता है, ठीक है, और सबको पता था, लेकिन उसको एक नया आउटलुक दिया उस साइंटिस्ट ने, क्योंकि वो इमेजिनेशन के हाईएस्ट फॉर्म में पहुंच करके उसने देखा कि चीज़ें, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं जाएगा, अगर पेड़ से गिरेगा तो नीचे ही क्यों आएगा, ठीक है। अब यही पॉइंट करता है, हम रोज़ देखते हैं, हमने रोज़ देखा, हमने लोटस देखा, हमें अच्छा लगा, हमने उसकी खुशबू सूंघ ली, हमको अच्छा लगा, ठीक है ना, लेकिन
मतलब उसमें खो जाना, जैसे कि एक जो मतलब वो ड्रंकार्ड है, तो ड्रंक मतलब बहुत हाईली ड्रंक करने के बाद में वो किसी चीज़ में एकदम खो जा रहा है, प्लेजर में खो जा रहा है। तो उस रोज के प्लेजर में जब आप खो जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी इमेजेस क्रिएट हो रही हैं आपके माइंड में, और उन बहुत सारी इमेजेस में जब आप उसको डिजॉल्व कर दे रहे हैं एक यूनिफाइड फॉर्म में, और उसके बाद में आप उसको डिसिपेट करते हैं, मतलब हाईएस्ट फॉर्म में जा करके उसको रिक्रिएट कर लेते हैं, तो आप बन जाते हैं पोइट। ठीक है, ओके। ना इसको हम सिंपल फॉर्म में भी देख लेते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन, उसके बाद हम फैंसी की बात करेंगे। क्रिएटिव ओरिजिनल यूज्ड अनकॉन्शियसली, ठीक है ना, हमने रोज देखा, हमको आनंद प्राप्त हुआ, ये अनकॉन्शियस प्लेजर है, उसमें हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ह्यूमन इंडिविजुअल पावर टू प्रोड्यूस इमेजेस, और ये इनहेरेंट है, बचपन से ही हमारे पास है कि हम इमेजेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज गॉड गिफ्टेड टैलेंट, राइट। लेकिन सेकेंडरी क्या है, पोएटिक फैकल्टी और साइंटिफिक फैकल्टी, विच नॉट ओनली गिव्स शेप एंड ऑर्डर टू अ गिवन वर्ड बट बिल्ड्स न्यू वर्ड्स। तो जो कुछ भी एग्जिस्टिंग है, केवल उसको एक नया फॉर्म ही नहीं देता है वो जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है, बट उसको नए फॉर्म में लाता है, ठीक है ना। एप्पल पहले से जमीन पर गिर रहा था, सबको पता था, ठीक है, लेकिन नए फॉर्म में लाया, जब वो उसको नए फॉर्म में लाया कि वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो नई चीज क्या आई, ग्रेविटेशनल थियरी। ओके, नाउ अब जो नया फॉर्म है हमारे पास में, वो इमेजिनेशन ने आपको एक नया फॉर्म में तो दे दिया, एक वाइडर इमेज दी जो डिजॉल्व्ड है, जो एक नए फॉर्म में है, लेकिन वो बनेगी कैसे फिर, उसके लिए हमको कुछ चाहिए क्या। जैसे आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट ने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया कि ये बिल्डिंग कैसे बननी है। अब वो बिल्डिंग को ड्रॉ कैसे कर रहा है, सेकेंडरी इमेजिनेशन के थ्रू, नॉट थ्रू प्राइमरी इमेजिनेशन। लेकिन अब बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मार्बल चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल जो भी सारे होते हैं वो सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो पोइट कॉलेज कहते हैं वो चीज है फैंसी। आपके पास सब कुछ, आपने मतलब एक इमेज है जिसपे आप पोइम लिख सकते हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए, मैकेनिकल एबिलिटी। द पोइट हैज टू यूज डिवाइसेस लाइक मेटाफॉर्स, एलिटरेशंस इन पोइट्री। तो जितनी भी पोइटिक डिवाइसेस हैं उनको यूज करने की जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी क्या है, फैंसी है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इन अदर टर्म्स उन्होंने लिखा है इसको, अ मोड ऑफ मेमोरी इमेंसिपेटेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड वर्किंग विद लॉ ऑफ एसोसिएशन। चीज़ों को एसोसिएट कैसे करना है और एसोसिएट करके उसको कैसे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो ऑल द पोएटिक डिवाइसेस and how to put the recreated form of secondary imagination into words is the fancy. I hope that's clear. Any doubt till here? Repeat once again, fancy. मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ओके। आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, आपने आर्किटेक्ट से कहा कि मेरे पास में इतनी इतनी ज़मीन है और हमको एक मकान बनवाना है, तो वो क्या करेगा, एक ब्लूप्रिंट लेकर के आपके सामने आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे आप किचन बनवा लो, यहाँ पे ये हो जाएगा, वहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब उसने वो ब्लूप्रिंट कैसे बनाया, थ्रू द दिस सिंथेटिक सेकेंडरी इमेजिनेशन, सिंथेटिक एंड मैजिकल पावर ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है ना। यहां से उसने एक ब्लूप्रिंट बना दिया। अब लेकिन ब्लूप्रिंट को एक्चुअल फॉर्म में तो भी दिखाना पड़ेगा आपको। तो एक्चुअल फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, आपको ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, आयरन चाहिए आपको, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें उनको फिर एक यूनिफाइड फॉर्म होल में लाना, वो है फैंसी, ठीक है। तो पोइट के लिए वो चीज क्या है, उसकी जो मैकेनिकल एबिलिटी है कि जैसे
अब यहाँ पे पोइट्री और प्रोज की भी अगर आगे हम बात करेंगे, प्रोज में जो कॉलेज कहते हैं कि प्रोज का जो वर्ड ऑर्डर होता है वो अलग टाइप का होता है, पोइट्री का अलग टाइप का होता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू वर्ड्सवर्थ। ठीक है, कभी पोइट ने ये कैसे लिख दिया कि 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस। ठीक है, तो वो ये जो वर्ड ऑर्डर है 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस, उससे वो कौन सा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है अपने ऑडियंस के ऊपर, ये उसकी फैंसी है। ठीक है, कैसे वो फिगर्स ऑफ स्पीचेस को यूज कर रहा है, कैसे कोहेरेंस मार्कर्स को यूज कर रहा है, कैसे मीटर को यूज कर रहा है। ठीक है ना, कैसे चीज़ों को, इन सब चीज़ों से कैसे वो एसोसिएट करके एक नई बिल्डिंग बना रहा है, एक पोएम बना रहा है। दैट इज व्हाट वी नो एज फैंसी। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट है सेकेंडरी इमेजिनेशन, और बिल्डिंग जब सारी चीज़ों को एसोसिएट करके जब एक बिल्डिंग बन जाती है तो हो जाती है, तो वो है फैंसी। ठीक है, बिल्कुल मतलब और उसको हाँ मतलब उसको क्या हम बोलेंगे, रियलिटी में उसको प्रोड्यूस करना, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन है ना। आपको मैकेनिकल एबिलिटी से याद रखना पड़ेगा, मैकेनिकल एबिलिटी। ठीक है, हाँ। अब देखो अच्छा, इसको आप ऐसे भी और समझ लो, जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है और बहुत हाई लेवल पे होती है, बट दे आर स्टिल अनेबल टू राइट। उसके लिए फिर क्या होता है, वो लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, और क्या पढ़ते हैं जा करके, क्रिएटिव राइटिंग। आपने अनीता देसाई के बारे में सुना होगा, शी इज़ एन एमिरेटस प्रोफेसर ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। ठीक है, अब वो बच्चों को क्या पढ़ा रही है, मैकेनिकल एबिलिटी को डेवलप कर रही है वो। ठीक है, ओके। अब फाइनली इस चैप्टर के लास्ट में जो लिखा हुआ, फाइनली गुड सेंस इज द बॉडी, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है गुड सेंस को वो किसको रेफर करते हैं, या फैंसी को किस चीज़ में रेफर करते हैं। गुड सेंस बॉडी है, और फैंसी क्या है, ड्रेपरी। ड्रेपरी क्या है, क्लॉथ्स। ठीक है, अब ये देखो पोइट्री का जो मीटर है, डिक्शन वगैरह है, ये फिगर्स ऑफ स्पीचेज है, ये क्या है, वो कपड़े हैं जिससे आप पोइट्री को डेकोरेट कर रहे हैं अपनी मैकेनिकल एबिलिटी के थ्रू, राइट। तो फैंसी इज ड्रेपरी, मोशन वो उसकी लाइफ है। ठीक है, एंड इमेजिनेशन द सोल, और उसमें कौन सी इमेजिनेशन पोइट ने डाली है, वो उसकी आत्मा है। क्लियर टिल हियर, इज इट क्लियर? ओके, अब क्या होता है, यहीं पे इनकी थीसिस डिसकंटिन्यू हो जाती है। डिसकंटिन्यू मतलब ये मतलब चैप्टर 13 के बाद में लेटर फ्रॉम अ फ्रेंड इसका रेफरेंस है, और वो फ्रेंड क्या है, पर्सन फ्रॉम पोरलॉक एज क्रिटिक्स से। आपको याद होगा जो कुबला खान, शायद 51 लाइन्स हैं उसमें कुबला खान में, तो उनका तो बहुत बड़ा मतलब था, मुझे बहुत कुछ लिखना था उसको कुबला खान में, लेकिन वो नहीं लिख पाए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि देयर वॉज एन इंट्रूडर। ठीक है, और वो इंट्रूडर क्या इंटरप्रेट किया जाता है कि वो पोरलॉक से एक पर्सन था। पोरलॉक क्या है, एक विलेज का नाम है जहाँ पर वो कुछ दिन के लिए रहने गए थे। कुछ लोग इंटरप्रेट करते हैं कि वो जो पोरलॉक से पर्सन था वो वर्ड्सवर्थ था। ठीक है, लेकिन आज की अगर हम मॉडर्न क्रिटिसिज्म तक में अगर सबको देखें तो पीपल से दैट इट वाज नोबडी एल्स देन कॉलरिज हिमसेल्फ। ठीक है, लेकिन कौन था या नहीं था ये शायद एग्जाम में नहीं आएगा, बिकॉज वो मतलब कंट्रोवर्शियल है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये जरूर आ सकता है कि वो पर्सन कहाँ से था, फ्रॉम पोरलॉक। ठीक है, पोरलॉक क्या करता है, द ऑथर इज एडवाइज, ऑथर किसको एडवाइज करता है, वो कॉलरिज को, टू रिजर्व सच अ डॉन्टिंग टास्क फॉर द लोगोसोफिया। देखो अब ये आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया था, इसको इनको लोगोसोफिया एक बिगर फॉर्म में लिखना था। ठीक है, तो उसने कहा, इंट्रूडर ने कहा कि भाई ये बहुत डॉन्टिंग टास्क है, आप प्लीज इसको आप यहीं पे रुक जाइएगा। ठीक है, तो कॉलरिज
रुक गए और इमेजिनेशन के बारे में क्रिटिक्स से दैट ही वॉज गोइंग टू राइट अराउंड 100 पेजेस अबाउट इमेजिनेशन, लेकिन ओनली लास्ट 3 स्टेंजाज एंड पैराग्राफ्स आर डिवोटेड टू दिस इमेजिनेशन, जो उनकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो वहीं रुक गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, इंट्रूजन एट दिस पॉइंट, हाँ, हैज टेंस द डेफिनेशन ऑफ इमेज। तो अभी मैंने आपसे बात की थी कि केवल उन्होंने मतलब जो लास्ट के 3 पैराग्राफ्स थे उसमें उन्होंने उसको पूरा कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ तो फिर आप थोड़ा आनंद ले लीजिएगा। ओके ना, एकदम एक उसमें मारूंगा हाथ और जंप करेगी, उसमें जो भी लोग बैठे होंगे मैं उनको खींच के जमीन पे पटक दूंगा, है ना। विल यू बिलीव ऑन मी? Yes, sir. No, sir. No, sir. देखा तो मेरे तो उस पे क्यों बिलीव कर रहे हैं फिर आप? तो उस आनंद ले रहे थे ना आप लोग। Don't believe. I don't watch these kind of सर movies. बिलीव करेंगे तभी तो। नहीं, एक सेकंड, आनंद अच्छा ले ठीक है, आप इस टाइप की नहीं देखते, लेकिन किस टाइप की देखते हैं आप मूवी, बताइए। तो मूवीज तो बहुत ज्यादा मैं नहीं देखती हूँ। अच्छा, जो भी लेकिन हाँ, सीरियल देखते हैं? नहीं, सीरियल भी नहीं देखती। आई डोंट वॉच टीवी। अच्छा, तो आप कुछ नहीं देखते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अच्छा ये देखो, क्या ऐसा होता है ज़िंदगी में? इसने देखो टीवी में जो है ना वो सास बहू को मार रही है, ठीक है, उसका ब्लड निकल रहा है, और ये देखो बच्चा कितना परेशान है, और ये ससुर साहब जो बैठे इधर, जो इधर बाहर जो दर्शक हैं ससुर साहब, ये वो खुश हो रही है सास, है ना, और वो गुस्सा कर रहा है। डज इट हैपन इन आवर लाइफ? इट हैपन्स, राइट? मतलब एज स्पेक्टेटर्स इट हैपन्स विद, राइट ना। अब ये ऐसे कैसे हो रहा है जब हमको ये पता है कि ये बहू मरने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो रियल नहीं है, फिर भी वो गुस्सा कर रहा है, सास हंस रही है, बच्चा परेशान है, ठीक है। अब वो जो सिंघम जो कर रहा है ये हमको पता है कि मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन स्टिल हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम एंजॉय कैसे कर रहे होते हैं उसको, ये वही सीन आ गई दोबारा से। हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं थिएटर में बैठ करके। एक्चुअली कॉलेज क्या कहते हैं कि जब हम थिएटर में जाते हैं, या जब हम कोई नोवेल पढ़ने बैठते हैं, या हम कोई पोइम पढ़ने बैठते हैं, तो हम जो हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उससे हम कट जाते हैं, एंड वी बिगिन टू टॉक टू द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, वी बिगिन टू टॉक टू द नोवेलिस्ट, वी बिगिन टू टॉक टू द पोइट, ओके। और हम उस समय क्या करते हैं, जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी रियलिटी, जो कुछ हमको पता है कि सच क्या है, उसको हम क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंड ऑफ डिसबिलीफ। मतलब ये जो सिंघम कर रहा है ये हमारा डिसबिलीफ है, लेकिन अगर हमको इसको एंजॉय करना है तो उस डिसबिलीफ को कि वो सच नहीं है, इसको हमको सस्पेंड करना पड़ेगा, ओके। अब एक्चुअली होता क्या है, 2 लेवल है हमारे थिंकिंग के, एक इमोशनल लेवल है और एक कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट है। अब कॉग्निशन जानते हैं आप लोग? कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है, नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं अपने थॉट्स के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और सेंसेस के थ्रू, ठीक है। तो कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट होता है और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमारा जो ऑलरेडी से कॉग्निटिव परसेप्शन है दुनिया का, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं कार में एक घूंसा मारूंगा और कार जंप कर जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस यू हैव सम मैजिकल पावर्स, राइट। तो वो जो रियलिटी है, ठीक है, वो उस रियलिटी से कॉन्ट्रास्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है जो फिक्शनल रियलिटी है, या जो मूवी में वो सिंघम करके दिखा रहा है। तो अगर हम जब सिंघम वो जो कुछ भी वो प्ले कर रहा था, अगर वो उस समय अगर हम सोचने लगे अरे यार ये क्या कर रहा है, ऐसा भी कभी हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो वी विल नॉट एंजॉय दैट मूवी, वी विल नॉट एंजॉय अ पोएम, वी विल नॉट एंजॉय any literary part if we begin to think in terms of our cognitive perception of the world, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है,
अनकॉन्शियसली, ये हम ऐसा सोच के नहीं जाते हैं कि नहीं हम बाहरी दुनिया के बारे में अब नहीं सोचेंगे, जब हमको तो मूवी केवल एंजॉय करना है, हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, हम ऐसा सोचते नहीं है, बट इट हैपन्स एक्चुअली। और उसका काम क्या होता है, जो डायरेक्टर है या जो ट्रांसक्रिप्ट राइटर है या जो पोइट है, वो आपको ट्रांसपोज करता है इस टाइप, या तो लैंग्वेज के थ्रू, सीन्स के थ्रू, करेक्टर्स के थ्रू आपको ट्रांसपोज करता है। ट्रांसपोज कहाँ करता है? फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ व्हाट? फिक्शन, राइट? इमेजिनेशन, राइट? ओके, then just a minute. I hope this clear. This is clear. Now should we come to yes? So we should now okay. Now we'll come to what actually causes sage, उनकी जो definitions वगैरह है, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऑल विलिंग सस्पेंस इन्होंने स्टार्ट किया था, इट वॉज एग्रीड। अब देखिए रेफरेंस किसका है? रेफरेंस है लिरिकल बैलेट्स का, ठीक है? इट वॉज एग्रीड बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज दैट माई एंडिवर्स शुड बी डायरेक्टेड टू पर्सन्स एंड करेक्टर्स विच आर सुपर नेचुरल। तो इनको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में लिखना था, और एटलीस्ट जो रोमांटिक करेक्टर्स हैं, yet so as to transfer from our inward nature. Okay, just a minute, I'm getting one call. Ansh, one second. Yes, yes, so at least romantic, yet so as to transfer our मैं कहाँ था? यस, तो उनको रोमांटिक करेक्टर्स, सॉरी सुपर नेचुरल करेक्टर्स इंक्लूड करने थे उसमें, और एटलीस्ट रोमांटिक करेक्टर्स। मैं सुनाई दे रहा हूँ आपको क्योंकि मैं बीच में थोड़ा चला गया था। ओके 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 ओके। येट सो एज टू ट्रांसफर फ्रॉम आवर इनवर्ड नेचर अ ह्यूमन इंटरेस्ट एंड सेम्बलेंस ऑफ ट्रुथ। सेम्बलेंस ऑफ ट्रुथ की पहले भी बात हो चुकी है। सेम्बलेंस क्या है? इट्स एन आर्केइक फॉर्म for resemblance, similar to, sufficient to procure for these shadows of imagination that willing suspension of disbelief for the moment which constitutes poetic faith। तो इनका कहना ये है कि हम लोगों ने ये एग्री किया था कि मैं सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को उसमें इंक्लूड करूँगा, या ऐसे रोमांटिक कैरेक्टर्स को इंक्लूड करूँगा जो लोगों को सोचने पर मजबूर करेंगे कि जो वो पढ़ रहे, जो भी करेक्टर्स उनकी पोइट्री में है वही रियलिटी है, वो अपने एक्सटर्नल वर्ड से अलग हो जाएंगे। उसी के लिए इन्होंने विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ टर्म का यूज किया है। और आपको एक और बात याद रखना होगा, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ उनके टाइम में उन्होंने मतलब अपने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के लिए किया था कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे लोग कैसे बिलीव करेंगे, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पोएटिक फेथ क्या होता है? एनी आइडिया? पोएटिक फेथ, अच्छा ये आप एक नोट कर लीजिएगा। पोएटिक फेथ जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रांसिस टेलर थे, एक उनका सेक्युलराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट था, सेक्युलराइजेशन, ठीक है? वहाँ से आया है फ्रांसिस टेलर, सेक्युलराइजेशन। अब सेक्युलर आइडिया क्या है? मतलब कोई भी रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन से बड़ा नहीं है, ठीक है ना? तो सभी को मतलब एक ही फॉर्म में देखने की बात करते हैं, ठीक है? तो ये जो इनका जो पोएटिक फेथ है, ये कहते हैं कि चाहे वो राइटर हो या रीडर हो, दोनों ही बिलीव इमेजिन कर सकते हैं कि नॉट बिलीविंग इन द करेक्टर्स द स्टोरी ऑफ पोएम, ठीक है? तो दोनों ही ये मतलब उनके पास राइट है कि वो बिलीव ना करें कि जो भी करेक्टर्स हैं स्टोरी में, ठीक है? लेकिन अगर राइटर के पास ये पावर है, मतलब राइटर कुछ ऐसा उसमें इंक्लूड करने का कोशिश करे कि वो उनसे बिलीव करवा सके, ठीक है? कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले कि लोग मतलब उन पे बिलीव करने को मजबूर हो जाए। अगर वो मजबूर हो जा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? आपका जो इमेजिनेटिव लिटरेचर है वो सक्सीड हो रहा है। अगर आपने अपने ऑडियंस को एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो रियलिटी है, जो आपका कॉग्निटिव परसेप्शन है दुनिया का, उससे ट्रांसपोज करके अगर आप फिक्शनल वर्ल्ड में उसको ले आ पा रहे हैं और उसको बिलीव करवा रहे हैं जो भी आप बता रहे हैं उसको,
तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग गुड इमेजिनेटिव लिटरेचर। और वो आप कैसे करवा पाएंगे, थ्रू विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ठीक है ना, ये एग्रीमेंट हुआ था उनका। ठीक, मिस्टर वर्ड्सवर्थ ऑन द अदर हैंड वॉज टू प्रपोज टू हिमसेल्फ एज हिज ऑब्जेक्ट टू गिव द चार्म ऑफ नोबिलिटी। ये मतलब ये सारी चीज़ें उनको करनी थी, पता है आपको। थिंग्स ऑफ एवरी डे एंड टू एक्साइट अ फीलिंग एनालोगस टू द सुपर नेचुरल। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, उनको करना था टू एक्साइट अ फीलिंग एनालोगस उनको भी, लेकिन एक ऐसी फीलिंग अपनी पोट्री में देनी थी जो एनालोगस, एनालॉजी जानते हैं ना, एनालॉजी मतलब रिलेट करना। ठीक है, to the supernatural by awakening the mind's attention from the lethargy of custom and directing it to the loveliness and the wonders of the world before us। तो इनफैक्ट वो यही बात कर रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ को भी कुछ ऐसा करना था जिससे कि वो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, मतलब लोग जो भी आप लिख रहे हैं उस पर बिलीव करें और आपकी दुनिया में ट्रांसपोज हो जाए। उनको लगे कि हाँ अरे यार ये तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, ये तो ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, कुछ ऐसा लगे, सो दैट पीपल कैन एंजॉय दैट। ठीक है, लेकिन आपको पता है शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब उन्होंने जो वो लिखा, क्या नाम, लिरिकल बैलेट्स का प्रीफेस लिखा वर्ड्सवर्थ ने, उसमें उन्होंने किसकी बात कर दी थी, ऑर्डिनरी लाइफ, कॉमन मैन, लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। तो उससे वो एग्री नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला फिर ये सारा सस्पेंशन वगैरह कहाँ से आएगा, कुछ होगा ही नहीं फिर तो। ठीक है, तो फिर वो आपका जो इमेजिनेटिव पावर है वो काम क्या कर रहा है। ठीक है, ओके। अब इस पे एक जो फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डेविड चैंडलर, कॉलेज ड्रू हिज नोशन फ्रॉम मार्कस टुलियस सिसरोज हिस्टोरिया क्रिटिका फिलोसोफिया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इन्होंने इस टर्म या नोशन, नॉट टर्म, इस नोशन को लिया है। ठीक है, और इस वर्क में फ्रेज क्या था, असेनस सस्पेंशन। ओके, और सस्पेंशन ऑफ असेन। तो ये एग्जाम में हो सकता पूछ लिया जाए कि वो नोशन उन्होंने कहाँ से लिया था या एक्चुअल फ्रेज क्या था विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के लिए। अब डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। वो कहते हैं द इंटेंशनल अवॉइडेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक। ठीक है, मतलब आपको जो भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, जैसे उसने मतलब गन से उसने मारा अजय देवगन ने और कार ऊपर एयर में गई और वो उसने एक आदमी को खींच के बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इंटेंशनली अपनी लॉजिक को ख़त्म कर देना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। इन एग्जामिनिंग समथिंग अनरियल और इम्पॉसिबल इन रियलिटी। अब आपको अगर ये सोचने लग जाएगी कि दिस कैन नॉट हैपन इन रियल, तो क्या होगा, तो फिर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सच एज ए वर्क ऑफ स्पेक्युलेटिव फिक्शन इन ऑर्डर टू बिलीव इट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का पर्पज केवल यही है, सो दैट योर रीडर, योर स्पेक्टेटर कैन एंजॉय in what you have written or what you have shown on the theater. Okay, please stop me whenever you ask, like asking question. Any doubt till here? No sir. All right. अब हम जल्दी से, आपने ये सबने पढ़ी हुई, हम इसको मतलब पढ़ाने नहीं जा रहे हैं इस पोइम को। ठीक है, मैं जल्दी से आप इसको रीड कर लीजिए, मतलब क्या अल्बर्टोस की कहानी है। क्वेश्चन है। यस प्लीज। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से चैप्टर में दिया है? 14 चैप्टर 14। मैंने आपको बताया था चैप्टर 13 जो है ना, चैप्टर 13 के बाद, हाँ चैप्टर 13 पे क्या हुआ, एक इंट्रूडर आया, वहीं पे कहानी खत्म हो गई। उसके बाद में सेकंड वॉल्यूम कहाँ से आया, चैप्टर 14। ओके सर। हाँ वहीं सर चैप्टर 13 है, उसमें फैंसी एंड इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है। जी। और सर चैप्टर 18 भी है उसमें क्या? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल हम उसकी भी बात करेंगे अभी। मतलब शायद हो सकता है 2 घंटे लगने वाले हैं जो भी है, चलो लेकिन हम कर लेते हैं उसको। तो ये हम इसकी स्टोरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल 2 चीज़ें इसमें बता दे रहे हैं। ये स्टोरी आपकी जो पोइट्री पढ़ाते हैं वो करवा लेंगे। ओवरव्यू तो सबको पता ही है, राइट? ओके, अब आपको देखिए उन्होंने क्या टेक्निक यूज की है, ये देखिए। दिस स्टेंजा इज फ्रॉम राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर।
He holds him with his glittering eye. The wedding guest stood still and listens like a 3 years child. ये इम्पोर्टेंट है. वो जो उसकी स्टोरी सुन रहा है वो कैसे सुन रहा है ये देखो. लाइक अ 3 years चाइल्ड. ठीक है. अब ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको कॉलेज? वो बताना चाह रहे हैं कि वो जो लिसनर है उसने अपने आप को कौन सी स्टेज में ला दिया है? बच्चे की. और एक ऐसा बच्चा जो लॉजिकली सोच ही नहीं सकता है. 3 साल के बच्चे को बोलो कि अजय देवगन ऐसा कर सकता है तो बच्चा बोलेगा हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं, पापा मेरे बोल रहे तो कर ही देगा. समझ पा रहे हैं आप? तो वो कैसे ट्रांसपोज कर रहा है अपने रीडर को किसमें, सो दैट द रीडर विलिंगली सस्पेंड द डिसबिलीफ. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें. उसके बाद में वो मतलब सी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देता है वो बहुत ही स्लिमी थिंग्स के बारे में बात करता है. डेथ लाइक क्रीचर्स हैं वहाँ पे. बहुत सारी चीज़ों को ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है जिस पे हम बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन उसने अपने ऑडियंस को ट्रांसपोज कर दिया है सो दैट हिज ऑडियंस कैन बिलीव ऑन द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दैट ही इज गोइंग टू हैव इन दिस पोएम. ओके, इज दैट क्लियर? ऑलराइट. नाउ चैप्टर 14 में ही इन्होंने डेफिनेशन दी है पोएम की. दो मतलब क्रिटिक्स से दैट ही कुड नॉट गिव द कंप्लीट डेफिनेशन, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो हम बात कर लेते हैं. अ पोएम इज दैट स्पेसीज ऑफ कंपोजिशन विच इज अपोज्ड टू वर्क ऑफ साइंस. आपने याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बोला था एपिस्टेमोलॉजिकल वर्सेस एस्थेटिक. ठीक है, तो वर्क ऑफ साइंस क्या है? एपिस्टेमोलॉजिकल है. ठीक है, और एस्थेटिक पोइट्री से रिलेटेड है, प्लेजर. ठीक है, by proposing for its immediate object pleasure, not truth. ट्रुथ नहीं है लेकिन उसमें semblance of truth है, बस इतनी सी बात है. ठीक है, और immediate उसका एम क्या होता है? to give the pleasure to the audience. ठीक. a creature of imagination not reason. यहाँ पर भी देखिए, poetry is not the creature of imagination, is a creature of imagination not reason. अब इमेजिनेशन तो उस बच्चे ने भी की थी जो बच्चा देख रहा था कि एप्पल नीचे आ रहा है, लेकिन उसने उसमें क्या अप्लाई किया? लॉजिक अप्लाई किया. तो वो क्या बन गया? एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी बन गई. पोइट लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहा है, इमेजिनेशन को वो ऑडियंस के सामने ला रहा है. ठीक है ना, और किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ प्लेजर. इट्स अप्रोच मस्ट बी इंट्यूटिव रादर देन लॉजिकल और इंडक्टिव. इंट्यूटिव आप समझ पा रहे हैं? इंट्यूटिव मतलब जो हमारे अंदर है. ठीक है, लॉजिकल नहीं मतलब जो हमारा इंट्यूशन कह रहा है, जो हिंदी में अगर आप बोलो तो मतलब जो हमारा मन कह रहा है, जो हमारा मन कर रहा है. ठीक है ना, जो हमारी आत्मा कह रही है. और ये इंडक्टिव नहीं है. इंडक्टिव डायरेक्टिव अप्रोचेज आप लोगों को पता होंगे, आई बिलीव सो. उसमें भी आपको लिंग्विस्टिक्स वाले में भी शायद पढ़ाएंगे रवि सर आपको. ठीक है ना, अगर ना हो तो पूछ लीजिएगा, आइडिया ना हो तो. और वो कहते हैं कि ये इट्स नॉट एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बट एन एक्सप्रेशन ऑफ जीनियस दैट ब्रिंग्स द होल सोल ऑफ मैन इनटू एक्टिविटी. एक्चुअली यहाँ पे नॉट ओनली एन अरेंजमेंट होगा, वो शायद मैंने गलत टाइप कर दिया होगा उसमें. ठीक है, होल सोल ऑफ अ मैन इनटू एक्टिविटी मतलब वो पोइट क्या करता है? अपनी आत्मा को रख देता है अपनी पोइट्री में. उसकी जो इमेजिनेशन जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन है उसकी सोल के थ्रू उसको वो पोइट्री में रख देता है. ठीक है, एंड डिफ्यूजेज अ टोन एंड स्पिरिट ऑफ यूनिटी दैट ब्लेंड्स. टोन एंड स्पिरिट ऑफ यूनिटी दैट ब्लेंड्स फ्यूजेज ईच इनटू ईच बाय द सिंथेटिक एंड मैजिकल पावर ऑफ इमेजिनेशन. इनकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, सिंथेटिक एंड मैजिकल पावर ऑफ इमेजिनेशन. इनके थ्रू वो क्या करता है? यूनिफिकेशन होता है, चीज़ों को डिफ्यूज करता है, चीज़ों को ब्लेंड करता है. ठीक है, और उसको एक नई फॉर्म में लेकर के आता है. अब हम आ जाते हैं चैप्टर 18 पर. देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि बहुत ही स्कैटर्ड व्यूज है कॉलेज के.
मतलब आप एकदम से क्लियरली ये नहीं कह सकते हो कि पोइट्री की बात उन्होंने चैप्टर 14 में ही की है, या इमेजिनेशन का केवल और केवल चैप्टर 13 में ही की है। जैसे वर्ड्सवर्थ और जो मतलब उन्होंने अपने आप वर्ड्सवर्थ को रिफ्यूट करने के लिए जो भी बातें कही वो कई सारे चैप्टर्स में कही हैं। जैसे वो स्टार्टिंग कर देते हैं वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करना चैप्टर 4 से ही, ठीक है। लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको इमेजिनेशन और फैंसी के लिए याद रखना है चैप्टर 13, पोट्री की डेफिनेशन चैप्टर 14, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ चैप्टर 14। चैप्टर 18 में वो बात करते हैं मीटर की, उसका इफेक्ट क्या होता है ऑडियंस के ऊपर, उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, और इम्पोर्टेंस क्या है। यहीं पर वो अभी हमने जो आपको आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल दिया था, याद आ रहा है आपको? आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा वो ब्लूप्रिंट लेकर के आता है, फिर उसको कि अब केवल ब्लूप्रिंट से काम नहीं चलने वाला है, वो उसको चाहिए ब्रिक्स चाहिए, मार्बल चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो वो जो ब्रिक्स मार्बल्स वगैरह है उसको वो मीटर से कंपेयर करता है सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वर्ड्सवर्थ ने एक पोइम को एनालाइज किया था अपनी उसमें प्रीफेस में, जब वो कहते थे इट शुड हैव द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, ठीक है। और कौन सी थी वो? ग्रे की एक सोनेट थी ऑन द डेथ ऑफ वेस्ट। उन्होंने बोला था दिस इज़ नॉट अ गुड पोइम बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ मेट्रिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। तो इसी के रिस्पॉन्स में उन्होंने चैप्टर 18 में मीटर इफेक्ट्स की बात की है, याद रहेगा ना आपको? ग्रे की सोनेट ऑन द डेथ ऑफ वेस्ट। सर जो एलिजी है ग्रे की, वो भी तो शायद रिचर्ड वेस्ट की डेथ पर ही लिखी थी उन्होंने। एलिजी तो नहीं, ऐसा तो नहीं है एलिजी। मैंने पढ़ा है बहुत बार। अच्छा, अगर आपने पढ़ा होगा तो हो सकता है आप सही बोल रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चार्ट की आप बात कर रहे हैं ना? जी सर। अच्छा सर परहैप्स इट इज रिटन एज अ मैनकाइंड होल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था। तो हो सकता है इन्होंने कुछ अगर पढ़ा हो, तो जब आपको एलिजी पढ़ाई जाएगी तो उसके बारे में बात कर लीजिएगा। मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ अभी, क्योंकि मुझे पढ़े हुए उसको बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। हाँ, तो उस टाइम पे आप उनसे बात कर लीजिएगा, टू द कंसर्न प्रोफेसर, ओके। ऑलराइट, अबाउट मीटर। तो ये यहाँ पे एक ये पॉइंट याद रखना है कि ये इन्फ्लुएंस, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो इन्फ्लुएंस्ड है जर्मन थियरी ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है। वो कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स एंड द होल ऑफ एनी आर्ट वर्क शुड बी एज इन अ प्लांट बी म्यूचुअली सस्टेनिंग। अब ये म्यूचुअली सस्टेनिंग की जो बात करते हैं वो कह रहे हैं फॉर्म एंड स्टाइल और कंटेंट। तो कंटेंट जो पोइट्री का है वो तो इमेजिनेशन के थ्रू आ रहा है, सेकेंडरी इमेजिनेशन, ठीक है ना। अब उसको एक फॉर्म देने की जो ज़रूरत है वो कैसे आएगा? थ्रू फैंसी, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको चाहिए मीटर। तो अगर दोनों एक दूसरे को अगर दोनों म्यूचुअली सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो फिर वो ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट नहीं है। बैलेंस होना चाहिए। जो स्पॉन्टेनियस इम्पल्सेस हैं आपकी पोइट्री को लिखने के लिए, जिसकी वर्ड्सवर्थ ने बात करी थी स्पॉन्टेनियस इम्पल्सेस की, एंड वॉलंटरी पर्पज, ठीक है। आप जब वॉलंटरली उसको लिख रहे हैं तो उसमें उसको कैसे, मतलब एक यूनिफाइड होल उसको फॉर्म दे रहे हैं, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। मेट्रिकल फॉर्म शुड नॉट ओनली ग्रो नेचुरली फ्रॉम द seed of a poem's content, it will also in turn affect the essential meaning of that poem. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो कहते हैं कि पोइट्री अगर जो आप मीटर यूज़ कर रहे हैं उसमें इतना पावर होना चाहिए कि वो मीनिंग को भी इन्फ्लुएंस कर सके। शेक्सपियर की जब आप सोनेट्स पढ़ेंगे, शेक्सपियर की सोनेट्स हैं सिलेबस में, तो उनकी एक सोनेट 18 है, अगर आप खुद से उसको पढ़ सके, ठीक है, क्या नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो उस सोनेट को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मीटर ने हाईली इन्फ्लुएंस्ड किया है उसकी मीनिंग को, ठीक है। ओके, सो प्रॉपर फॉर्म पोइट्री का कब आता है? जब उसमें
जब उसको उसको उसके क्लॉथ्स से उसको सजा दिया जाता है। क्लॉथ्स की बात किस में करते हैं वो, फैंसी, राइट। पोइट्री इज डिफेक्टिव विदाउट मीटर, ये इन्होंने ही स्टेटमेंट दिया है। यूज्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कहा कि जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो फोकलोर्स वगैरह होती थी, ठीक है ना, रिटर्न में कुछ भी नहीं था, तो ओरल ट्रेडिशन था स्टोरी टेलिंग का, या जो भी मतलब फोक लोर्स होती थी, तो वो लोग कैसे याद रख पाते थे, क्योंकि उनमें ऐसा रिदम होता था, राइम होता था, जिसकी वजह से लोगों को याद रहती थी सारी चीज़ें। अब वो रिदम और राइम कैसे आती है, थ्रू मीटर। और स्टिमुलेंट टू अटेंशन, अगर पोइट्री में मीटर नहीं है तो हो सकता है वो आपके अटेंशन को ग्रैब ना कर पाए, ठीक है। तो इस वजह से वो बहुत ज़रूरी है। आपकी इमोशंस को भी एक्साइट करता है, क्योंकि आप मतलब उसको जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप इनफैक्ट यू आर सिंगिंग इट एक्चुअली, है ना, इफ इट हैज़ मीटर। लाइक व्हाट यीस्ट डज टू लिकर, देखो ये बार बार उसकी बात कर रहे हैं, लिकर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यीस्ट उसको लिकर को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है, वैसे ही ये मीटर जो है ना पोइट्री को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क, otherwise I believe that you must be tired now. थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, शाम okay. को 5 बजे क्लास है आप लोगों की ब्रिटिश पोइट्री पे, और इस क्लास के बाद ब्रिटिश पोइट्री को शायद ब्रेक किया जाए करेंगे जन्मेजय भैया, जो जन्मेजय सर पढ़ा रहे हैं आपको, त्रिपाठी तिवारी सर। उसके बाद वो